Hello students, hope you all are good. Today we are going to learn one of the heart-touching and ironical story, that is the cop and the anthem. First of all, let us see the brief introduction of the writer and the summary of the story. O. Henry, 1862 to 1910. William Sidney Porter, an American writer, is better known by his pen name or a nickname O. Henry. He was a voracious reader since childhood. Voracious means here activity with great eagerness. He started a humorous weekly, The Rolling Stone, and when the venture failed, he joined the Washington Post as a reporter, columnist, and occasional cartoonist. The story Cop and the Anthem is one of O. Henry's well known stories. To describe his style of writing, people have often used the term smile with tears, which implies his twisted way of thoughts and endings in almost every story. Eh, O. Henry wrote lots of stories. Out of these stories, The Cop and the Anthem is one of his famous or well known story. His way of writing or style of writing is different from other writers, and that's why people use a term smile with tears, which implies his twisted way of thoughts and endings in almost every story. It means he gave a different ending almost every story. Let us see the summary of the story. In this story, the main character Soapy is a vagabond and a person with criminal background. Vagabond means what? A person who wandered from place to place without home or job. It means here Soapy has, hasn't his own house and he hasn't a job. He is a homeless and a jobless person with criminal background. He has a criminal background. He makes different plans to re-enter the prison as he has no shelter to protect himself from the severe winter. We can see in European countries and in America also severeness of winter, and that's why Soapy use a different plans, different tricks to re-enter in the prison. Why? Because to protect him from the winterness or coolness. The story ends in an unexpected way. O. Henry has depicted Soapy's futile attempts to get arrested in a very humorous way. Futile means unsuccessful. Here, Henry shows or prescribed Soapy's unsuccessful attempts to get arrested in a very humorous way. It means O. Henry prescribed few comical scenes in the story. The Cop and the Anthem is about freedom and confinement. Confinement means here prison. Initially, Soapy feels that there is freedom from miseries and worries in confinement. Prison. The notes of Anthem transform him from within and he resolves to work hard. Soapy faces the irony of fate as the moment he realizes the real freedom lies in a virtual life, he is taken into confinement. Here, in this story, we can see how he used different tricks, ideas to re enter in the prison, and that's why we can see some humorous or comical scenes. And here, Soapy feels that, or Soapy thinks that uh, confinement is better than freedom. But after listening the notes of anthem, his soul transformed and he decided he will do something for himself in the society. But at the same time, the cop arrested him. It's the summary of the story. मीन्स इस स्टोरी में क्या दिया हुआ है, ये स्टोरी की समरी क्या है. सोपी एक मेन कैरेक्टर है और वो कैसा है, वैगबॉन्ड. इट मीन्स उसे उसका अपना कोई घर मकान नहीं है और जॉब भी नहीं है और उसका बैकग्राउंड कैसा है, क्रिमिनल बैकग्राउंड है. और वो अलग अलग से ट्रिक्स और प्लान्स करता है. क्यों?
टू री एंटर द प्रिजन, वो जेल में जाने के लिए, प्रिजन में जाने के लिए अलग अलग से प्लान्स करता है। बिकॉज टू प्रोटेक्ट, टू सर्वाइव हिमसेल्फ, वो अपने आप को बचाना चाहता है उस विंटर सीजन में। अब उसका कोई मकान नहीं है और इसीलिए वो एक शेल्टर, एक सेफ़ प्लेस ढूंढ रहा है, और इसीलिए वो जेल उसके हिसाब से एक सेफ प्लेस है, और इसीलिए वो अलग अलग से प्लान्स करता है। वही इस स्टोरी में कुछ कॉमेडी और ह्यूमरस सीन्स यहाँ पे हम लोगों को देखने मिलते हैं। और जब आफ्टर लिसनिंग द नोट्स ऑफ एंथेम, वो एंथेम के जो सॉन्ग है वो सुनने के बाद उसका माइंड चेंज हो जाता है। उसे अपना पास्ट, उसकी बैकग्राउंड उसे याद आती है, और उसे लगता है कि इट इज़ बेटर दैन समथिंग, जो नथिंग से बेटर दैन समथिंग जो कहा जाता है कि हम, मेरी अपनी कोई पहचान होनी चाहिए, मैं भी इस सोसाइटी में कुछ हूँ या कुछ बनना चाहता हूँ, ये उसके माइंड में आता है। और वो उसका माइंड चेंज हो जाता है, और वो डिसाइड करता है कि नेक्स्ट डे से वो कुछ करेगा उसके खुद के लिए। उसी वक्त पुलिस उसे अरेस्ट करते। इट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। नाउ वी विल सी द स्टोरी इन डिटेल। The cop and the anthem. Soapy left his bench and strolled out of the square and across the level sea of asphalt, where Broadway and Fifth Avenue flowed together. Up Broadway he turned and stopped at a luxurious cafe. At the beginning of the story, we can see Soapy, who is sitting on the bench. He left his bench and strolled. Stroll means here walked in a leisure way. वो slowly, धीरे धीरे आराम से चल रहा है, वो सी लेवल जो रोड है उस रोड पे। वेयर ब्रॉडवे एंड फिफ्थ एवेन्यू फ्लो टुगेदर, जो न्यूयॉर्क सिटी में ब्रॉडवे एंड फिफ्थ एवेन्यू इज़ द नेम्स ऑफ रोड्स, और ये रोड्स जहाँ पे मिलते वो चौराहा जिसे कहा जाता है, वहाँ पे पहुँचता है। अब ब्रॉडवे ही टर्न एंड स्टॉप्ड एट अ लग्जरियस कैफ़े। उसके बाद वो ब्रॉडवे इस रोड पे वो चलता है, आगे चलने के बाद उसे एक लग्जरियस कैफ़े दिखता है और वहाँ पे वो रुकता है। सोपी हैड कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ फ्रॉम द लोवेस्ट बटन ऑफ हिज वेस्ट अपवर्ड। ही वॉज शेवन एंड हिज कोट वार्म ट्रिम and his neat black bow had been presented to him by a lady missionary on Thanksgiving Day. सोपी के अंदर एक कॉन्फिडेंस था, और उसका जो उसने पहरावा, ड्रेसिंग की हुई थी, उस पे से लग रहा था। ही वॉज शेवन, उसने उस रोज़ शेविंग भी की हुई थी। एंड हिज कोट वॉज ट्रिम, वो कोट कैसा है, नीट क्लीन। एंड हिज नीट ब्लैक बो, और उसने जो बो पहनी हुई थी, हैड बीन प्रेजेंटेड टू हिम बाय अ लेडी मिशनरी ऑन थैंक्स गिविंग डे। और वो जो ब्लैक बो थी वो कैसी किसने दी हुई थी, एक लेडी मिशनरी ने उसे थैंक्स गिविंग डे के दिन। थैंक्स गिविंग डे कौन सा रहता है, द फोर्थ थर्सडे ऑफ नवंबर, जो नवंबर का फोर्थ थर्सडे रहता है, जो एक रिलीजियस सेरेमनी सेलिब्रेट की जाती है, और वहाँ पे जो ट्रेडिशनल मील रहता है उस वक्त, जहाँ पे वो शायद कहीं गया हुआ था, उस वक्त उसे एक लेडी मिशनरी ने वो गिफ्ट दी हुई थी। If only he could reach a table in the restaurant unsuspected, success would be his. वो सोचता है कि अगर वो उस रेस्टोरेंट में टेबल तक, रेस्टोरेंट के अंदर टेबल तक वो पहुंचता है किसी को डाउट आए बगैर, अनसस्पेक्टेड कहा गया, यानी कि किसी के डाउट आए बगैर अगर वहाँ तक पहुँचता है तो सक्सेस वुड बी हिज। सक्सेस कौन सा है, ही वॉन्ट्स टू री एंटर इन द प्रिजन, उसे प्रिजन जेल में जाना है, उसके लिए उसे कुछ करना है। और उसका पहला प्लानिंग कौन सा है कि उस रेस्टोरेंट में जाना है, टेबल तक पहुंचना है। द पोर्शन ऑफ हिम दैट वुड शो अबाउ द टेबल वुड रेज नो डाउट इन द वेटर्स माइंड। अ रोस्टेड मलाड डक, thought Soapy, would be about the thing with a bottle of wine and some cheese, a cup of coffee, and a cigar. तो वो अपने आप से क्या कहता है, अपने आप से मतलब वो सोच रहा है, अपने आप से कुछ कहता है कि वहाँ जाके वो कौन सी चीज़ों की ऑर्डर देगा। अ रोस्टेड मलाड डक, थॉट सोपी। मलाड डक मीन्स या जैसे इंडिया में हम लोग हेन या चिकन के ऑर्डर देते, उसी तरह से वहाँ पे डक मिलते। तो रोस्टेड मलाड डक वुड बी अबाउट द थिंग विथ अ बॉटल ऑफ वाइन, उसके बाद अ बॉटल ऑफ वाइन एंड देन सम चीज़,
अ कप ऑफ कॉफ़ी एंड अ सिगार। और वो एक कप कॉफ़ी लेगा, उसके बाद एक सिगार लेगा। $1 फॉर द सिगार वुड बी इनफ, और $1 की वो सिगार लेगा, ये इतना काफ़ी है। द टोटल वुड नॉट बी सो हाई एज टू कॉल फोर्थ एनी एक्सट्रीम ऑफ रिवेंज फ्रॉम द कैफ़े मैनेजमेंट। और वो अपने आप से सोच रहा है या कह रहा है कि जो टोटल बिल होगा वो इतना भी हाई या ज़्यादा नहीं रहेगा कि जो कैफ़े मैनेजमेंट है वो उससे रिवेंज ले, बदला ले। एंड एट द मीट वुड लिव हिम फील्ड एंड हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर आइलैंड। और जब मतलब अगर उसे मैनेजमेंट को या कैफ़े मैनेजमेंट उसे जेल में भेजते तो इसका उसे दुख या दर्द नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस वक्त उसने अच्छा और भरपेट खाना खाया होगा और उसके बाद वो अपनी वो पसंदीदा जगह पे भी पहुंच जाएगा। बट एज सोपी सेट फुट इनसाइड द रेस्टोरेंट डोर, द हेड वेटर्स आई फेल अपॉन his tattered trousers and decadent shoes. Strong and ready hands turned him about and conveyed him in silence and hasty to sidewalk and averted the ignoble fate of menaced Malad. लेकिन जैसे वो उस रेस्टोरेंट के अंदर एंट्री करने ही वाला है उसी वक्त जो हेड वेटर है उसकी निगाह आई फेल अपॉन कहा गया यहाँ पे, तो उसकी निगाह उसके जो टैटर्ड ट्रोज़र एंड डिकेडेंट शूज़ है, पुराने क्लोथ्स है, उसके बाद जो फटे हुए शूज़ है उस पे जाती है। एंड ही स्टॉप हिम, ही प्रिवेंटेड हिम टू एंटर इन द प्रिजन, वो सॉरी इन द रेस्टोरेंट, वो उसे रेस्टोरेंट में आने से रोकता है और साइलेंटली उसे वहीं से वापस जाने के लिए कहता है। मतलब उसे हाथ पकड़ के बाहर रोड पे लाता है और तुरंत वहाँ से वो निकल जाता है कि कहीं उसके साथ हाथापाई न हो जाए। इग्नोबल मीन्स डिसऑनरेबल। Sophie turned off Broadway. It seemed that his route to the coveted island was not to be an easy one. Some other way of entering the limbo must be devised. वहाँ से सोपी जो है ब्रॉडवे की ओर से मतलब वहाँ से मुड़ जाता है। इट सीम दैट, अब उसे पता चलता है कि उसका जो रूट है कोवेटेड आइलैंड मीन्स हियर ग्रेटली डिज़ायर्ड, जो उसे उसे वो जिस चीज़ को चाहता था, कौन सी चीज़ को, उस जो यहाँ पे विंटर आइलैंड कहा गया है। विंटर आइलैंड मीन्स व्हाट, वो प्रिजन में जाना चाहता था, जेल में जाना चाहता था। वो उसके लिए इतना आसान नहीं होगा, वो रास्ता उसके लिए इतना आसान नहीं है, उसे मेहनत करनी होगी। सम अदर वे ऑफ एंट्रिंग द लिम्बो मस्ट बी डिवाइस, यानी कि उसके लिए और कुछ प्लान करना होगा, ये वो सोच रहा है। एट अ कॉर्नर ऑफ 6th एवेन्यू इलेक्ट्रिक लाइट्स एंड कनिंगली डिस्प्लेड वेयर्स बिहाइंड प्लेट ग्लास मेड अ शॉप विंडो अट्रैक्टिव। उसके बाद वहीं पे वो 6th एवेन्यू इस रोड पे वहाँ पे वो देखता है कि एक इलेक्ट्रिक एक शॉप है और वो जो मतलब इलेक्ट्रिक वायर्स लगाए हुए, इलेक्ट्रिक मतलब लाइट्स लगाई हुई है और इसी वजह से वो अट्रैक्टिव दिख रहा है। और शोकेस में, शोरूम में, विंडोज़ में जो ग्लास लगी है उसके अंदर से कुछ चीज़ें वहाँ पे रखी हुई है जो बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रहा है। सोपी टुक अ स्टोन एंड डैश्ड इट थ्रू द ग्लास। और सोपी क्या करता है, बिना कुछ सोचे समझे एक पत्थर उठाता है and he cracked the glass. People came running round the corner, a policeman in the lead. Soapy stood still with his hands in his pockets and smiled at the sight of brass button. उसी वक्त वहाँ पे लोग पूरे दौड़ के आते हैं और उसमें सबसे आगे और कौन है, कॉप, पुलिस है। और जब वहाँ पे लोग आते हैं सोपी जो है साइलेंटली अपने दोनों हाथ जेब के अंदर डाल के वहाँ पे रुका हुआ खड़ा हुआ है। Where is the man that done that? Inquired the officer agitatedly. Agitatedly means angrily, nervous manner. गुस्से में वो कॉप या पुलिस मैन उससे पूछता है कि ये जो किसने किया है, जिसने पत्थर मारा है और एक गिलास तोड़ी हुई है, तो वो कहाँ पे है? डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव हैड समथिंग टू डू विथ इट, सेड सोपी। और सोपी क्या कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये मैंने किया है? विथ अ फ्रेंडली वॉइस एज वन ग्रीट्स गुड फॉर्चून। और वो कैसे फ्रेंडली वॉइस, अच्छे से मुस्कुराते हुए उससे कहता है कि क्या तुम्हें ऐसे नहीं लगता कि ये सब कुछ मैंने किया है? क्योंकि वो जानता है कि इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी। जब ये वो ऐसा कहेगा तो वो कॉप या पुलिसमैन उसे पकड़ेगा और उसे अरेस्ट करके जेल में डालेगा।
द पोलिसमैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट सोपी इवन एज अ क्लू। लेकिन जो सोपी ने जो उसे कहा है, इस बात पे पुलिसमैन बिलीव नहीं करता, क्योंकि वो ये सोचता है कि जिसने भी पत्थर मारा वो वहाँ पे रुकेगा ना, और वो ये नहीं कहेगा कि मैंने पत्थर मारा। मैन हु स्मैश विंडोज डू नॉट रिमेन टू चैट विथ द पुलिस। जिस इंसान ने पत्थर मारा वो कभी भी पुलिस से बात करते हुए नहीं खड़े रहेगा, रुकेगा नहीं। दे टेक टू देयर हील्स। जो लोग थे वो वहाँ से चले जाते। द पुलिसमैन सॉ अ मैन हाफ वे डाउन द ब्लॉक रनिंग टू कैच अ कार। उसी वक्त वो पुलिसमैन देखता है कि एक आदमी जो रोड पे दौड़ रहा है, कार के पीछे दौड़ रहा है। विद ड्रॉन क्लब ही ज्वाइन इन द परस्यूट। और उसके पीछे पुलिसमैन भी उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए दौड़ने लगता है। सोपी विद डिस्गस्ट इन हिज हार्ट ड्रिफ्टेड अलॉन्ग ट्वाइस अनसक्सेसफुल। और यहाँ पे सोपी का सेकंड अटेम्प्ट भी फेल हो जाता है, और वो यहाँ पे अब कैसा है, ड्रिफ्टेड अलॉन्ग है, यानी कि अनहैप्पी। वो गुस्से में है, नर्वस है, और वो अकेला ही वहाँ से चल रहा है। ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट वॉज अ रेस्टोरेंट ऑफ नो ग्रेट pretensions. It catered to large appetites and modest purses. Its crockery and atmosphere were thick, its soup and nappy thin. उसी रोड पे ऑपोजिट साइड में वो एक रेस्टोरेंट देखता है, जो जहाँ पे कि ऑफ नो ग्रेट प्रिटेंशंस का, यानी कि वहाँ पे ज़्यादा कोई मतलब रोकने वाले नहीं है, या फिर ज़्यादा ये नहीं है, स्ट्रिक्ट नहीं है। और उस रेस्टोरेंट के बारे में यहाँ पे कुछ बताया। इट कैटर्ड टू लार्ज एपेटाइट्स एंड मॉडेस्ट पर्सेस। इट मीन्स वहाँ पे कोई भी उस रेस्टोरेंट में एंट्री कर सकता है। उस रेस्टोरेंट के बारे में और जो चीज़ें बताई, जैसे कि इट्स क्रॉकरी एंड एटमॉस्फेयर वेयर थिक, इट्स सूप एंड नेपरी थिन। उस रेस्टोरेंट के अंदर की चीज़ों के बारे में बताया। Into this place, Sophie betook himself without challenge. Now, Sophie entered in the restaurant without any challenge. यानी कि बिना किसी हिचकिचाहट के वो उस रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है। एट अ टेबल ही सैट एंड कंज्यूम बीफ स्टिक, फ्लैप जैक्स, डॉग नट्स एंड पाई। उस रेस्टोरेंट में वो बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे बीफ स्टिक है, फ्लैप जैक्स है, डॉग नट्स है एंड पाई, ये सारी चीज़ें वो लेता है, भरपेट खा लेता है। And then he told the waiter the fact that the minute's coin and himself were total stranger। और उसके बाद वो सच्चाई बताता है। कौन सी सच्चाई? कि he hasn't money, he hasn't any amount। और वो कहता है कि वो एक स्ट्रेंजर है, उसके पास पैसा नहीं है। Now get busy and call a cop, said Sophie, and don't keep a gentleman waiting। और उसके बाद वो आगे सजेशन भी देता है उसे कि डोंट वेस्ट योर टाइम, नाउ कॉल अ कॉप, यानी कि पुलिस को बोलो अपना टाइम वेस्ट मत करो। No cop for you, said the waiter with a voice like butter cakes and an eye like the cherry in the Manhattan cocktail। और वो जो वेटर है वो बहुत ही गुस्से में है, उसकी आंखें लाल हो चुकी है, और गुस्से में वो ज़ोर से कहता है नो कॉप फॉर यू, यानी तुम्हारे लिए पुलिस की ज़रूरत नहीं है, कॉप को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन ही कॉल हिज टू अदर टू सर्वेंट्स, और जो उस रेस्टोरेंट में जो एम्प्लॉयज़ है उन्हें कॉल करता है। नीटली अपॉन हिज लेफ्ट ईयर ऑन द कैलॉस पेमेंट, टू वेटर्स पीच सोपी। और उसके बाद दो वेटर उसे उसको पकड़ के सोपी को बाहर लेकर आते। ही अरोज जॉइंट बाय जॉइंट एज अ कारपेंटर्स रूल ओपन एंड डस्टेड हिज क्लोथ्स। और वहाँ पे रोड पे फिर उसके बाद सोपी जो अपने आप को मतलब वो सीधा स्ट्रेट हो जाता है, सीधा खड़े रहता है। अरेस्ट सीम नाउ बट एन इल्यूजिव ड्रीम। इल्यूजिव मीन्स डिफ़िकल्ट टू फाइंड। अब अपने आप को अरेस्ट करना ये उसके लिए कैसा हुआ है, इल्यूजिव, यानी कि बहुत ही डिफ़िकल्ट ड्रीम हो चुका है, जहाँ पे वो पहुँच नहीं पाता, इस तरह का ड्रीम हो चुका है। द आइलैंड सीम वेरी फार अवे। जो आइलैंड, जो प्रिजन है, अब उसके लिए बहुत ही दूर की बात हो चुकी है। A policeman who stood before a drug store 2 doors away laughed and walked down the street। और वहीं पे कई दूरी पे एक पुलिसमैन था जो खड़ा था, वो ये सारा सीन देख रहा था, और वो देखने के बाद वहाँ से मुस्कुरा के चला जाता है। Sophie was seized with
A sudden fear that some dreadful enchantment had rendered him immune to arrest. अब सोफी जो थोड़ा डर रहा है, उसके दिल में थोड़ी घबराहट पैदा हुई है। किस चीज़ की? कि उसे ऐसे लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो अननोन चीज़ है जो उसे अरेस्ट होने से रोक रही है। उसके दिल में एक डर आया है। उसे ऐसे लग रहा है कोई ऐसी सुपर नेचुरल चीज़ हो, सुपर नेचुरल पावर होगी, सुपर नेचुरल चीज़ होगी जो उसे अरेस्ट होने से रोक रही है। ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ पैनिक। वो थोड़ा मतलब चिड़चिड़ा हो चुका है। एंड वेन ही केम अपॉन अनदर पुलिसमैन लॉन्गिंग ग्रैंडली इन फ्रंट ऑफ अ ग्लिटरिंग थिएटर, he caught an he caught at the immediate straw of disorderly conduct। और उसी वक्त वो एक देखता है कि एक पुलिसमैन जो है थिएटर के पास वहीं पे रुका हुआ है। उसी वक्त उसके माइंड में ही कॉट एट द इमीडिएट स्ट्रॉ ऑफ डिसऑर्डरली कंडक्ट मीन उसके माइंड में एक गलत आइडिया, रॉन्ग आइडिया आ जाती है। डिसऑर्डरली कंडक्ट मीन्स कुछ गलत करने की आइडिया उसके माइंड में आती है, जिससे कि वो कुछ गलत मिसबिहेव करे और पुलिस उसे पकड़ ले, अरेस्ट करे। ऑन द साइड वॉक सोपी बिगैन टू येल ड्रंकन गेब्रिश एट द टॉप ऑफ हिज हार्श वॉइस। और अब जो है सोपी क्या कर रहा है, उस रोड पे वहीं पे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है, जैसे कि ड्रंकन ड्रिंकिंग किए हुए लोग जैसे चिल्लाते उस तरह से वो चिल्लाने लगता है। ही डांस हॉल्ड अरेव्ड एंड अदरवाइज डिस्टर्ब द स्काइज। और वो रोड पे वहीं पे साइड में क्या कर रहा है, डांस भी कर रहा है, ज़ोर से चिल्ला रहा है, गलत मिस वर्ड का भी यूज़ कर रहा है, मतलब गलत वर्ड्स भी यूज़ कर रहा है एंड डिस्टर्ब कर रहा है, सब लोगों को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। द policeman merely twirled his club, turned his back to Soapy and remarked to a citizen। उसी वक्त वो जो पुलिसमैन है वो वहाँ पे आता है और सोपी की ओर देख के देन उसके बाद ही टर्न हिज बैक टू सोपी एंड रिमार्क टू अ सिटीज़न। वो सिटीज़न को रिमार्क करा, उन्हें कुछ बोलने की कोशिश करा, उन्हें कुछ बता रहा है। दिस वन ऑफ देम यल लैड सेलिब्रेशन द जूस एग दे गिव टू द हार्टफोर्ड कॉलेज। और वो कहता है कि हमें पता चला है कि हार्टफोर्ड कॉलेज से के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं। नॉइजी बट नो हार्म, वी हैव इंस्ट्रक्शंस टू लेट देम बी। और वो कहता है कि ये थोड़ा शोर शराबा कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, किसी को तकलीफ़ नहीं देंगे। एंड दैट्स वाई वी हैव इंस्ट्रक्शंस टू लेट देम बी। और वो कहता है कि हमें इंस्ट्रक्शंस है कि उन्हें अरेस्ट नहीं करना, उन्हें छोड़ देना है। देखिए हम लोगों ने अभी तक जो देखा हुआ है, तो यहाँ पे सोपी के बारे में देखा है कि सोपी जो है अलग अलग से प्लान्स ट्रिक्स यूज़ कर रहा है कि जिससे कि वो जेल के अंदर जाए, प्रिजन में जाए और वो उसकी जो विंटर सीज़न है वो वहाँ पे सुकून से आराम से बिताए। और इसलिए अलग अलग से प्लान्स कर रहा है, लेकिन हर एक प्लान में अभी तक के जितने प्लान्स हुए उसमें वो फेल हुआ है। In next lecture, we will see the remaining part of the story. Thank you.